Good afternoon to all. Respected Professor Vesh Thakur ji, Professor of Chemistry, SP Shimla, Dr. Malkiyat ji, Professor of Hindi, CHP Dharmshala, faculty members of this esteemed college, that is DAV College, Kangra, my PhD scholars and dear participants. First of all, I express my gratitude and sincere thanks to the organizing committee for inviting me in this very important conference that is scheduled with effect from 1st June to 3rd June, and the various experts, they have delivered their lectures on the different aspects of their area, and my talk on this in this conference is on the bees, honeybees, and why the bees are important on the earth, and the role of the microbiota of the honeybees, means how it can help to improve the health of human beings as well as the other beneficial organisms. We know that the bees, they are very important, and they are known, or they are producing different types of products for the human, like honey, then wax, propolis, venom. Even venom is very important. Then royal jelly, and apart from this, the bees, they are very important because they are responsible for the pollination. We know that if there is no bees on the earth, then the life cannot be possible. Means कोई भी धरती के ऊपर आपको कोई भी जैव विविधता नहीं दिखेगी. Means bees, they are responsible for the transfer of different types of gene pool in the biodiversity. And the bees, we know that there are different species of bees which produce the honey, and they have the different microbiota in their gut. And the gut is very important because the microbiota reside in case of bees, especially in the terminal part of the alimentary canal. And this microbiota also help in producing the different probiotics, and it is also helpful for the immunity and as well as for the disease resistance, and sometimes also help in their biosensing, or it also help in their nervous system. So my talk is on the first, what are the different species of bees, and second, how we can manage the bees in the different seasons, and how the microbiota can help to increase the honey production in the hives. So we know that bees, they are basically responsible for the pollination, and in biodiversity, 75% of the pollination is done by the honeybees, and these bees, they have more than 20,000 species. Means the bees, they are very very important because they have very wide genetic pool. बहुत ज़्यादा genetic biodiversity है. Then honeybees, they have the well organized organization. Means they have different types of workers and different types of members in their colony. For example, worker bees, these are the sterile females basically, and then queen, we know that queen, they are responsible for the egg laying. Then drones, they are responsible for mating. Then they have the different life stages, like they go through different types of molds, like egg, then larva, different stages of larva, pupa, then adult. And the bees, they are means if there is a
production of royal jelly in a particular cell, then the queen will be found. Means it depend upon the condition of the colony or the hive, whether they have the queen or not. Then there are different types of bees. First, we can say that giant bee or rock bee. रॉक बी मीन्स एपिस डॉर्सेटा, जो हम देखते हैं जो वाइल्ड में होती है, आज की डेट में बहुत सारे कई बार इंसिडेंट्स भी होते हैं, तो उनको हम एपिस डॉर्सेटा बोलते हैं, उनको हम जाइंट बी भी बोल सकते हैं. एंड दे आर नॉन डोमेस्टिकेटेड, मीन्स इनको हम डोमेस्टिकेट नहीं कर सकते हैं. एंड दे आर लीव इन द वाइल्ड इन द रॉक्स, और दे आर वेरी हार्डी इन द एनवायरमेंट. Then we have the dwarf bees, or we can say these are the laddu bees or little bees, Apis florea. They produce very small amount of the honey, like they can produce only 500 gram only honey. Then we have nesting honeybees or domesticated honeybee. हमारे पास दो स्पीसीज हैं, that is first is Apis mellifera, जिसको हम इटालियन बी बोलते हैं. Then we have Apis cerana. And there are different races of these bees. Means Apis cerana, there are different races. In south that is different. Then in North India the bee race is different. So we can domesticate only two species. तो हमारे पास दो species हैं, उन्हीं को ही हम domesticate कर सकते हैं. That is Apis cerana and Apis mellifera. जो Apis cerana है, it is Indian bee. It is very hard and it is responsible for the resistant. It can produce the resistance against the different disease. Then first is the giant bee. What is giant bee? We know that this is the Apis dorsata और rock bee. नाम से पता लग रहा है कि रॉक्स में या बड़े ट्रीज में आपने देखा होगा कि इसकी बहुत सारी जो स्पीसीज हैं, बहुत सारी जो कॉलोनीज है वो आपको मिलेगी. एंड इट इज नेटिव टू द नेपाल, श्रीलंका, जो हमारा साउथ ईस्ट एशिया है, इसमें इसकी जो स्पीसीज है वो डिफरेंट रेसीज जो है इसकी मिलती हैं. एंड इट इज वेरी वी कैन से दे कैन मीन्स दे स्टिंग द ह्यूमन वेरी फास्ट एंड दे आर वेरी फ्रेजाइल. देन वी हैव द ड्वार्फ बी, दैट इज एपिस फ्लोरिया. जो एपिस फ्लोरिया है वो स्मॉल साइज की है और बहुत कम, जो आप नेस्ट भी इसका देख सकते हैं कि इस तरह का कई बार ट्रीज के क्रैक्स में या जो हमारे बिल्डिंग्स हैं उनके क्रैक्स में दे फॉर्म द नेस्ट. देन दे आर ऑल्सो वी कैन नॉट डोमेस्टिकेट द एपिस फ्लोरिया एज वेल. देन यूरोपियन बी और इटालियन बी, दैट इज एपिस मेलिफेरा. जो एपिस मेलिफेरा है ये इटालियन बी है और इट इज वी आर वेरी फॉर्चुनेट दैट दिस बीज was first time introduced in this valley. कांगड़ा वैली में जो है तो फर्स्ट टाइम इसको 1962-1960 के आसपास जो है इसको इंट्रोड्यूस किया गया था. और जब ये पंजाब का कुछ एरिया था उस टाइम पे इसको पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के द्वारा यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया था. और फर्स्ट अटेम्प्ट में हम फेल हुए थे, बट सेकंड अटेम्प्ट में जो है इसको डोमेस्टिकेट किया था और हिमाचल से जो है कांगड़ा वैली से इसको बाकी रीजन्स में जो है भेजा गया और अभी जो है ये अडेप्टेड है डिफरेंट कंडीशंस में. एंड दिस एपिस मेलिफेरा इज वाइडली स्प्रेड, मींस इसकी जो स्पीसीज हैं, रेसीज हैं, वो बहुत सारी कंट्रीज में मिलती है, लाइक अफ्रीका, यूरोप, इंडिया, इस तरह से बहुत सारी कंट्रीज में जो है इसका डिफरेंट जो मींस रेसीज हैं वो प्रेजेंट है. एंड दिस bee can be domesticated because it is very docile. इसका टेम्परामेंट बहुत अच्छा है एंड ये ज्यादा स्टिंग नहीं करती है. इसको हम हैंडल कर सकते हैं, आप इसको दिन में भी हैंडल कर सकते हैं. इट इज मीन्स इट कैन प्रोड्यूस मोर हनी एज कम्पेयर टू द अदर बी स्पीसीज. सबसे ज्यादा जो स्पीसीज है यही हनी प्रोड्यूस करती है और एक जो कॉम है इट कैन प्रोड्यूस 40 to 60 kg ऑफ हनी. बहुत बड़ा अमाउंट है कि अगर हम इतना हनी अगर प्रोड्यूस करते हैं एक बी से. एंड जो लैंडलेस फार्मर्स हैं, जो लैंडलेस लोग मींस अनएम्प्लॉयड यूथ है, वो इस तरह की फार्मिंग जो है इसमें कर सकते हैं. देन देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइव्स. जब हम इनको डोमेस्टिकेट करना है देन वी नीड सम
space, some hive for the domestication. Then we have different types of hive like Langstroth hive, then Tauber hive. We have ISI marked hives. So we can use these type of hives for the rearing of these bees, and there are frames inside the hives. जो फ्रेम है वो हाइव्स के अंदर होंगी और लगभग अप्रोक्सीमेटली 10 frames can be accommodated in the one hive. This is the first bee research station that is in the नगरोटा बगवा. आप जानते होंगे सभी कि नगरोटा बगवा में 1925 में जो है 1925 में जो फर्स्ट टाइम इस तरह का बी रिसर्च स्टेशन जो है वो इसी वैली में कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में ही एस्टेब्लिश किया गया था. एंड द प्रोडक्शन ऑफ हनी बी वाज स्टार्टेड इन 1934 एट कुल्लू, देन इन 1936 इन कांगड़ा. तो इतने पुराने टाइम से जो है हम बी प्रोडक्शन कर रहे हैं. देन एपिस मेलिफेरा वाज फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस्ड इन नगरोटा बगवा. Now, what are the different principles of bee management? How the bees they are can be managed in the different season, because they are the living commodity, living entity, and we have to protect the bees population from the different pathogens and other enemies like predators, parasites, and other pathogens. The principles of bee management is that bees should have some experience. Means the एग्रीकल्चर रिक्वायर सम ट्रेनिंग. कुछ ट्रेनिंग आपको करनी पड़ेगी, कुछ स्किल्स अंदर डेवलप करनी पड़ेगी. देन यू कैन रियर द बीज कि उसके डिफरेंट एग्जामिनेशन कैसे करनी है, व्हाट आर द डिफरेंट ऑपरेशनल प्रोसीजर्स, क्या हमें उसमें करना है. तो उसके लिए आपको वी नीड एक्सपीरियंस. देन वी नीड सम इक्विपमेंट्स. जो हमारे पास मॉडर्नाइज्ड इक्विपमेंट्स हैं उनकी हमें जरूरत होगी. बहुत सारे इक्विपमेंट्स हम इसमें यूज करते हैं. आई कैन नॉट डिस्कस ऑल द इक्विपमेंट्स, बट we need different types of apparatus, different type of equipments for the rearing of the bees. Then bee livestock, colony and queen. Means we can start the bee production. जब हम कोई बक्सा रखते हैं, कोई हाइव रखते हैं, तो we need at least 4 frame of the bees, जिनमें ऐसी 4 फ्रेम हमें चाहिए जिसमें bees प्रेजेंट हों. वहां से हम स्टार्ट करते हैं. उससे नीचे अगर पॉपुलेशन है, then we cannot start the beekeeping. Then we need some diagnosis. हमें कुछ डायग्नोज करना है, कौन सी डिजीज है, अमेरिकन फॉल ब्रूड डिजीज है, बैक्टीरियल डिजीज है, वायरल डिजीज है, या अदर कोई प्रेडेटर्स आ रहे हैं, कुछ पैरासाइट्स हैं. तो उनके कंट्रोल करने के लिए या उनको डायग्नोज करने के लिए वी नीड सम एक्सपीरियंस एंड सम किट्स और सम कुछ केमिकल्स हमें उसकी जरूरत है. देन वी नीड अ वेरी कंजीनियल environment. Means optimum temperature should be there, proper ventilation should be there, proper shade should be there, the orientation should be good. तो इस तरह की बहुत सारे फैक्टर्स हमें उसमें वो भी ध्यान में रखने हैं. देन फीडिंग एंड स्टिमुलेशन. समटाइम्स जो बीज है वो जो है जैसे स्प्रिंग आता है, बसंत ऋतु आती है, तो वो एक्टिवेट नहीं होती. देन वी नीड स्टिमुलेशन. वी कैन प्रोवाइड सम sugar solution or some other supplement to the bees so they get some stimulation. Then we need feeding. If we have dearth period, means there is a scarcity of some pollen nectars, then we can provide the artificial feed like sugar solution, any other substitute, pollen substitute we can provide to the bees. Then colony monitoring. This is very important. Means we have to examine the colony whether there is optimum storage of honey, nectar, pollen, or what is the status of the brood. जो उसके बच्चे हैं, मीन्स एग्स हैं, वेदर दी क्वीन इज उस प्रॉपर कंडीशन में है, प्रॉपर एग्लिंग कर रही है, नहीं कर रही है, ओल्ड एज तो नहीं है, कोई डिजीज तो नहीं है. तो सारी मॉनिटरिंग करना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है. देन फाइनली वी हैव टू प्रोड्यूस हनी. वी हैव टू हार्वेस्ट द हनी इन a very hygienic conditions, or we can pack and we can market to the society. Now there are different types of honeybee species and they can produce the different honey according to their climatic conditions. Climatic conditions कैसी है, फ्लोरा है, नेक्टर है, नहीं है, उसके अकॉर्डिंग they can produce the different types of honey. For example,
यूरोपियन बी जो है हमारे लिए सबसे बेस्ट है, सबसे ज्यादा हनी प्रोड्यूस करती है, उसका टेम्परामेंट भी अच्छा है, डिसाइल है और उसको इजिली हम माइग्रेट भी कर सकते हैं फ्रॉम वन लोकेशन टू अदर। तो हमें अगर इस कंडीशन में अगर हम बात करते हैं, वी टॉक अबाउट द रीडिंग, देन वी कैन स्टार्ट विद द एपिस मेलिफेरा एंड एपिस सेराना। हम दो स्पीसी के साथ जो है इस एरिया में हनी प्रोडक्शन का सोच सकते हैं। देन व्हाट आर द डिफरेंट हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ हनी? वी नो दैट जो शहद है उसको हम जब बच्चा पैदा होता है उसके टाइम भी उसको शहद दिया जाता है, और जब मृत्यु होती है मनुष्य की तब भी उसको शहद दिया जाता है। तो इंडियन नॉलेज सिस्टम में, भारतीय ज्ञान परंपरा में अगर हम देखते हैं तो बहुत सारा लिटरेचर ऐसा है जिसमें जो हनी की न्यूट्रिशन क्वालिटी है, उसका एंटीबायोटिक स्टेटस है, वो दिखाया गया है, डॉक्यूमेंटेड है। तो हनी की जो वैल्यू है वो हम सभी जानते हैं, लाइक इट इज बूस्ट द एनर्जी, वेट लॉस कर सकते हैं हम नींबू पानी के साथ शहद डाल के, वी कैन यूज द हनी। देन वी हैव द एंटी कैंसर एंड एंटी एजिंग। और साथ में अगर वी टॉक अबाउट द रॉयल जेली, अगर रॉयल जेली की बात करते हैं तो उसमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जो एजिंग को कम करते हैं। देन रिड्यूस द रिस्क ऑफ डिजीज, डिजीज के लिए भी इम्यूनिटी को इंक्रीज करता है। देन इंप्रूव द डाइजेशन, देन इट इज फुल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स, एंटी एलर्जिक एंड एंटीबैक्टीरियल, बहुत सारी विटामिन्स हैं, बहुत सारे और मिनरल्स जो हैं वो हमारे इसमें हनी में प्रेजेंट हैं। देन देयर इज समटाइम्स देयर इज ए डिफरेंस इन द हनी। जब हम मार्केट में जाते हैं तो हमारे को दो तरह का हनी मिलता है, एक प्योर नेचुरल ऑर्गेनिक और समटाइम्स सिंथेटिक, और वी कैन से शुगर उसमें ऐड की है। तो कई बार क्वेश्चन ही पूछते हैं कि किस तरह से इसको पहचाने हम, किस तरह से। जो रॉ हनी होता है, इट कंटेन बी पोलन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर न्यूट्रिशन, तो हमें रॉ हनी ही ठीक है। देन अनहीटेड, अनप्रोसेस्ड, अनपास्चराइज्ड, रिच इन विटामिन। तो जो रॉ हनी है वो बेटर है एज कंपेयर टू द प्रोसेस्ड हनी। तो प्रोसेस्ड हनी में हम कई बार देखते हैं कि वो देखने को तो बहुत अच्छा लगता है आपको, आप डाबर का या किसी और का भी देखते हैं तो बहुत अच्छा प्रोसेस्ड हनी आपको नजर आता है, बट वो उसमें बहुत सारे न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी होगी। बट जो रॉ होगा समटाइम देयर इज ए ग्रैनुलेशन, आपको ग्रैनुलेशन नजर आती है शहद में कि जो है ग्रैनुलेट जम गया है, ये ठीक नहीं है, प्योर नहीं है, बट दैट इज ड्यू टू द हीटिंग। अगर हीट नहीं करेंगे तो उसमें ग्रैनुलेशन नहीं होगी, अगर हीट किया है तो ग्रैनुलेशन खत्म हो जाएगी। देन सीजनल मैनेजमेंट, देयर आर डिफरेंट सीजनल मैनेजमेंट्स लाइक फर्स्ट वी कैन स्टार्ट विद द स्प्रिंग मैनेजमेंट, और जिसको हम बोल सकते हैं वसंत ऋतु में किस तरह से वी कैन गो फॉर द मैनेजमेंट ऑफ बीज। फर्स्ट वी नीड सम स्टिमुलेशन बिकॉज देयर इज ए स्टार्ट ऑफ द फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है, और उस टाइम पे पोलन जो है बनना स्टार्ट हो जाते हैं, नेक्टर आ जाते हैं, क्वीन स्टार्ट्स लेइंग एग्स, बहुत सारे एग्स देना स्टार्ट करती है, और दे स्टार्ट बिल्ड अप देयर कॉलोनीज, मीन्स वो अपनी पॉपुलेशन को इंक्रीज करते हैं, दैट इज द बिल्ड अप पीरियड। उस टाइम पे सारे जितनी भी उनकी मीन्स एनर्जी है वो ब्रूड पे है, एगलिंग पे है, और जितने ज्यादा वर्कर्स प्रोड्यूस करेंगे उतने ज्यादा जैसे ही हनी फ्लो आएगा उस टाइम पे वो उतना हनी जो है कलेक्ट कर पाएंगे। देन दे स्टार्ट द फोरेजिंग, मीन्स दे स्टार्ट कलेक्टिंग द नेक्टर एंड पोलन्स। देन वी शुड गो फॉर द हाइव इंस्पेक्शन, कि हमें उसकी हाइव की इंस्पेक्शन करनी है, और देन वी कैन एक्सपेंड द हाइव स्पेस बिकॉज देयर इज ए इंक्रीज इन द पॉपुलेशन एज वेल एज इन द हनी। तो हनी फ्लो हो रहा है, हनी ज्यादा आ रहा है, तो हमें स्पेस भी प्रोवाइड करना है। हमारे पास एक स्टोरी है, हमें दूसरी स्टोरी, दूसरा बॉक्स रखना है, तीसरा, इस तरह से। लाइकवाइज वी कैन इंक्रीज द बॉक्सेज, वी कैन यूज द डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वीन एक्सक्लूडर्स टू अवॉइड द एग लेइंग इन द हनी एरिया जहां पे हनी हम प्रोड्यूस कर रहे हैं। देन वी कैन कंट्रोल द स्वार्म्स। जो स्वार्म है, इट इज ए नेचुरल इंस्टिंक्ट इन द बीज, मीन्स दे हैव द इंस्टिंक्ट ऑफ द डिवीजन ऑफ फैमिली। परिवार का विभाजन होता है जिसमें जो पुरानी मक्खी है, पुरानी रानी मक्खी है, दैट लीव द हाइव, वो उसको छोड़ के आधी पॉपुलेशन के साथ बाहर जाती है, दैट इज द स्वार्म। वी कैन कंट्रोल बिकॉज दैट कॉज द डिस्करेज, उससे डिस्करेज हो जाती है बीज और दे कैन नॉट प्रोड्यूस द हनी। देन क्वीन मैनेजमेंट मीन्स वी शुड प्रोवाइड द गुड क्वालिटी क्वीन। तो क्वीन को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं,
उसकी हेल्थ कैसी है, एगलिंग कैसी है, वेदर इट इज ले एग्स इन ए प्रॉपर डायरेक्शन, इन प्रॉपर पर्टिकुलर पैटर्न, और हैप्जेट वे में कहीं एगलिंग कर रही है, तो उससे हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देन कॉम मेंटेनेंस हम उसमें कर सकते हैं। वी कैन मैनेज द स्वार्म। जब कई बार देखते हैं आप गर्मियों के दिनों में देखते हैं बहुत सारी बीज जो हैं वो आपको आवाज, बजिंग की आवाज आती है, बात आपको सुनाई देती है, दैट इज स्वार्म बेसिकली। तो स्वार्म को कैसे कलेक्ट करना है, उस टाइम पे वो स्टिंग नहीं करती हैं, तो उस टाइम पे वो स्टिंग नहीं करेंगी, तो वी कैन कलेक्ट द स्वार्म एंड वी कैन प्लेस द स्वार्म इनसाइड द बॉक्स अगेन। उसको हम दोबारा उसमें डाल सकते हैं या दूसरे किसी और बॉक्स में हम उसको यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से आप जो स्वार्म कहीं बैठा है तो उसको आप कैप्चर करके रीइंट्रोड्यूस कर सकते हैं दोबारा किसी भी हाइव में। समटाइम्स देयर इज ए ड्रास्टिक इंक्रीज इन द पॉपुलेशन, बहुत ज्यादा एकदम पॉपुलेशन बढ़ जाती है और बहुत सारा जो बीज है वो उसको स्पेस नहीं मिल पाता है, देन वी नीड द डिवीजन ऑफ द बीज। जब परिवार बड़ा हो जाता है तो देन वी नीड डिवीजन, तो उस टाइम पे हमें डिवीजन करना है। तो दो बातें मैंने आपको बताई, अगर कॉलोनी वीक है देन वी कैन यूनाइट द two colonies. If we have means a large number of population of the bees, then we can divide the bees. That is a division. उसका अलग सा प्रोसेस है, कैसे करना है I will not discuss that. Then in summer management हमें पता है कि जब गर्मी आती है तो we need ventilation. हमें पानी चाहिए, हमें वेंटिलेशन चाहिए, हमें ज्यादा स्पेस चाहिए, वो सारा आपने प्रोवाइड करना है ताकि उनको सफोकेशन ना हो और प्रॉपर शेड हो, प्रॉपर उनका जो है उनको वाटर की सप्लाई हो, तो वी कैन प्रोवाइड द वाटर। एंड इन समर देर इज ए समटाइम इंसिडेंस और देर इज ए प्रेजेंस ऑफ माइट्स, जो बहुत सारे माइट्स हैं, चाहे वो एंडोपैरासिटिक्स हैं या एक्टोपैरासिटिक्स हैं, दे आर बेसिकली वेरी वेरी डेंजरस टू द बीज। तो जितने भी आप आज की डेट में हम देखते हैं जो बी की प्रोडक्शन में सबसे बड़ा बॉटलनेक है, दैट इज द प्रेजेंस ऑफ द माइट जो है वो पूरी कॉलोनी को आपके डिस्ट्रॉय कर सकता है। उसमें आपने देखा होगा बहुत सारी बीज दे स्टार्ट क्रॉलिंग, देयर इज ए के शेप्ड विंग, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिम्टम्स दे आर प्रोड्यूस्ड ऑन द बॉडी ऑफ द बीज। तो माइट, वी नो दैट व्हाट इज द माइट, इट इज 8-legged स्मॉल साइज आर्थ्रोपोड। उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। देन in monsoon we should provide some shelter, means we should protect the hive from the different types of insect pest as well as from the rain. तो आपने देखा होगा रेनी सीजन में भी बहुत सारे इंसेक्ट्स आते हैं, बहुत सारे एनिमीज जो है वो आते हैं, तो उस टाइम पे हमें अवेयर रहना है और हमें हाइव की प्रोटेक्शन करनी है, वेंटिलेशन प्रोवाइड करनी है। And the bees they start reducing their foraging, means they not collect the pollen and nectar, उस टाइम पे भी उनको कुछ नहीं मिलता है। then we can control the pest and we should provide the stability to the hive। कई बार बहुत सारा मॉइस्चर की वजह से जो है हाइव की जो ओरिएंटेशन है वो खराब हो सकती है। then in winter management means विंटर है बहुत इंपॉर्टेंट है। जब विंटर होता है तो क्या होता है कि हमें उस टाइम वेंटिलेशन नहीं चाहिए, उस टाइम में हीट जो एनर्जी है, जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन करना है। देन वी नीड पैकिंग, तो उस टाइम पे हम जो वीक कॉलोनीज हैं, 2 कॉलोनीज हम जो वीक हैं तो उनको इकट्ठा कर सकते हैं, उनको पैकिंग दे सकते हैं, चाहे पेडी स्ट्रॉ है या न्यूज़पेपर है, इस तरह की डिफरेंट पैकिंग जो है वो आप प्रोवाइड कर सकते हैं ताकि टेम्परेचर जो है मेंटेन रहे और कम से कम उस टाइम पे हमें मिनिमम जो है डिस्टर्बेंस करनी है, कम से कम एग्जामिनेशन करना है बीज का, कम से कम हाइव को ओपन करना है ताकि उनका टेम्परेचर मेंटेन रहे। अगर हमें उसको एग्जामिन भी करना है देन वी शुड ओपन द हाइव ड्यूरिंग द सनी मीन्स टाइम ऑफ द डे, उस टाइम पे आप उसको खोल सकते हैं। देन इंसुलेशन एंड हाइव रैपिंग आपको मैंने बता दिया, पैकिंग करनी है। चेक फूड स्टोरेज बिकॉज दैट इज द डर्थ पीरियड, उस टाइम पे उनको खाने को नहीं कुछ मिल रहा है, तो उस टाइम पे आपको आर्टिफिशियल sugar syrup different methods से we can provide the feed to the bees। then moisture control करना है और wind से भी protect करना है क्योंकि उस टाइम पे chill wind, इस तरह की ठंडी हवा चल रही है या कुछ इस तरह के कोई और predators हैं उनसे प्रोटेक्ट करना है, स्पेशली द wasps। तो आपने देखा होगा wasps, बहुत सारे wasp आते हैं, बहुत सारी स्पीसीज हैं लाइक वेस्पा, सिंक्टा, वेस्पा, Megacilia, there are different types of species of the wasp। then
एंट्स भी सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं, उनको भी आपने रोकना है। माइट्स हैं, वो भी रेनी सीजन में ज्यादा आते हैं। वैक्स मॉथ है, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैक्स मॉथ, लाइक ग्रेटर वैक्स मॉथ है, स्मॉल वैक्स मॉथ है, छोटे साइज का वैक्स मॉथ आता है। तो ये सारे जितने भी इस तरह के पैथोजेंस हैं, प्रेडेटर्स हैं, उससे आप इनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट एस्पेक्ट ऑफ द टॉक इज द माइक्रोबायोटा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आज की डेट में हम याकुट खाते हैं या पीते हैं, या और हमारे पास बहुत सारे ऐसे सब्स्टिट्यूट आ रहे हैं जिससे हमारी गट हेल्थ जो है वो ठीक रहे, और प्रोबायोटिक्स जो है यूज कर रहे हैं आज की डेट में, चाहे वो कर्ड है या कोई और फूड है, उसमें भी हम गट का जो हेल्थ है उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। इवन ह्यूमन बींग्स में भी हम गट की हेल्थ के रिगार्डिंग बहुत आज की डेट में अवेयर हैं, बिकॉज वी नीड गुड माइक्रोबायोटा इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, तो ताकि हमारा डाइजेशन ठीक रहे। जब हम एंटीबायोटिक्स खाते हैं तो बहुत सारा जो हमारा बेनिफिशियल फ्लोरा है वो मर जाता है, बहुत सारे माइक्रोऑर्गेनिज्म मर जाते हैं बेनिफिशियल। तो उसको कैसे मेंटेन किया जाए, उनके लिए क्या प्रोवाइड किया जाए, क्या उनके लिए सब्स्टिट्यूट प्रोवाइड किया जाए, उनको भी फूड चाहिए तो उनको कौन सा फूड प्रोवाइड करना है ताकि हमारा गट जो है वो ठीक रहे। तो इसी तरह से बीज में भी वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ microbiota, different types of bacteria. They are beneficial bacteria. They are inside the honeybee gut. Then they are very helpful in the nutrition and digestion. वो डाइजेशन भी प्रोवाइड, डाइजेशन में भी हेल्प करते हैं, न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करते हैं। तो उसके ऊपर साथ में ये पैथोजेंस भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। बहुत सारे पैथोजेंस हैं, बहुत सारा जो हमारी इम्यूनिटी है उसको कैसे ठीक रखना है, बीज की इम्यूनिटी को कैसे ठीक रखना है, उसके लिए भी ये हेल्प करते हैं। देन इम्यून सिस्टम को भी सपोर्ट करते हैं। डिटॉक्सिफिकेशन, अगर कोई टॉक्सिक मटेरियल अगर बीज ने अगर ले लिया है, उसको नेक्टर में कहीं हमने स्प्रे किया है, उसमें कोई टॉक्सिक मटेरियल, कोई इंसेक्टिसाइड्स आ गए हैं, देन उसकी डिटॉक्सिफिकेशन में भी वो हेल्प करती है। देन वी हैव द एनहांस्ड हेल्थ प्रोडक्टिविटी। तो बीज जो है वो अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर सकती है और अपनी हेल्थ को ठीक रख सकती है। We can that support the pollination and the ecosystem balance, because bees they are responsible for the ecological balance, and if there is a good microbiota inside the bees, then they are healthy and they are good for the ecosystem. Then the factors that affect the microbiota. What are the different factors? क्योंकि जब हमारे अंदर जो बैक्टीरिया हैं या किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर जो बैक्टीरिया बेनिफिशियल बैक्टीरिया हैं उनको भी इफेक्ट होता है, लाइक केमिकल्स। अगर हम कोई आर्टिफिशियल फूड ले रहे हैं या हम कोई टॉक्सिक मटेरियल यूज कर रहे हैं तो उससे माइक्रोबायोटा की डिप्लीशन होती है। देन एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, इट आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिप्लीशन ऑफ द माइक्रोबायोटा। एंटीबायोटिक्स है हमारे पास, बहुत सारे हम केमिकल्स यूज करते हैं, उसमें भी जो है इस तरह का अगर हम यूज कर रहे हैं केमिकल्स तो वो भी उसके डिप्लीट करते हैं, वो भी उसके प्रोडक्शन को इनहिबिट करते हैं। देन वी हैव डिफरेंट अदर फैक्टर्स लाइक क्लाइमेटिक फैक्टर, टेम्परेचर। इफ देयर इज नो प्रॉपर, अगर हमारे पास टेम्परेचर नहीं है, ह्यूमिडिटी नहीं है, तो उसमें भी ये सारे जो माइक्रोबायोटा है वो उसको डिस्टर्बेंस होती है। वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया लाइक लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देन we have Snodgrassella. There are different types of Giliamella. These are the beneficial microorganism inside the gut of the bees, and the population of these bacteria is more in the hind gut, that is the Proctodium. Proctodium में सबसे ज्यादा इसकी जो है पॉपुलेशन आपको मिलेगी, और we can maintain the good microbiota by maintaining the different types of by using the different types of management practices. हमारे पास हेल्दी फ्लोरा होना चाहिए, नेक्टर होना चाहिए। देन वी हैव गुड मीन्स कल्चर प्रैक्टिसेस, जो हमारा उनको कंट्रोल करने के लिए, डिफरेंट पैथोजेंस को कंट्रोल करने के लिए हम जो भी प्रैक्टिसेस यूज कर रहे हैं वो प्रैक्टिसेस भी जो है वो हमारी हेल्दी होनी चाहिए। तो इस तरह से वी कैन मेंटेन द गट माइक्रोबायोटा। दिस इज द जनरल स्ट्रक्चर ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल ऑफ द बीज। जो बीज की एलिमेंट्री कैनाल है उसमें इस तरह से डिफरेंट जो गट है, 4 गट है जिसको हम क्रॉप बोलते हैं, देन मिड गट है, हाइंड गट है। हाइंड गट में ही ये सारा जितना भी जो माइक्रोबायोम है ये
प्रेजेंट है, मेजर जो पॉपुलेशन है वो इसी में ही प्रेजेंट है. वी कैन आइसोलेट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बेनिफिशियल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द hind gut of the bees. Now there are three types of gut microbiota. तीन तरह के हमारे पास gut microbiota हो सकते हैं. First is the core gut microbiota, means it is beneficial for the individual, for the bees. ये उनके लिए इंपॉर्टेंट है. इसकी बहुत सारी स्पीसीज आपको सामने दिख रही है. देन नॉन कोर गट माइक्रोबायोटा, जो गट के बाहर है, कोर नहीं है बट वो भी उसमें प्रेजेंट होता है. समटाइम्स एनवायरमेंटल एंड पैथोजेनिक बैक्टीरिया, जब हम आइसोलेशन लेते हैं तो इस तरह के बैक्टीरिया भी हमें उसमें मिलते हैं. हमने रिकॉर्ड किए हैं कि इस तरह के बैक्टीरिया भी जो बीज की, चाहे एपिस डॉर्सेटा है, एपिस सेराना है, उनके गट से इस तरह से वी आर वर्किंग ऑन द टू स्पीसीज ओनली, दैट इज एपिस डॉर्सेटा एंड एपिस सेराना इन आवर लैब. देन इम्पैक्ट ऑफ माइक्रोबायोटा ऑन द हेल्थ एंड डिजीज. क्या इम्पैक्ट हो सकता है? इस तरह से जो है माइक्रोबायोटा जो है वो ऑक्सीजन लेवल को कम कर सकता है, पीएच लेवल को कम कर सकता है, इवन जो फॉरेजिंग बिहेवियर है उसको चेंज कर सकता है, हमारे नर्वस सिस्टम को या बीज के नर्वस सिस्टम को डैमेज कर सकता है. देन दिस टाइप ऑफ मीन्स प्रॉब्लम्स कैन बी प्रिवेल इफ देयर इज ए कंटेमिनेशन इन द gut microbiota. It help in the digestion. It can produce the different types of amino acids. It help in break down the different types of complex molecule into the smaller. तो इस तरह से बहुत सारी चीजें जो है कर सकता है. Then role of the gut bacteria in the immunity. तो immunity में बहुत important है. Immunity में it can act as a barrier. It can protect the our body from causing the infection. Then production of the antimicrobial substance. It can produce the antimicrobial substance. Then it can modulate the immune response. उसमें modulation में भी help करता है. Then competitive exclusion of the pathogens. Production of bacteriocins means can produce the some lethal compounds for the management of the pathogenic bacteria. Then role of the gut microbiota in nutrition, development and behavior of the honeybee. The behavior of honey is controlled by the microbiota. अभी एक पब्लिकेशन हुई है, नेचर में पब्लिकेशन आई है जिसमें जो है जो गट माइक्रोबियोटा है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द नर्वस सिस्टम. जो उसका नर्वस सिस्टम है, जो उसकी मीन्स जितना भी वो अपने डायरेक्शन को कंट्रोल करती है, किस तरह से मूव करती है, वो सारा जितना भी इस तरह की मेमोरी है, कहां से वो आई है, उसका पाथ क्या रहेगा, किस डायरेक्शन में उसको जाना है, जितना भी जो मेमोरी है उसको वो याद रखने में जो गट माइक्रोबायोटा है वो हेल्प करता है. तो इस तरह से इट कैन इंप्रूव द न्यूट्रिशन एंड द मेटाबॉलिज्म. गट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. देन रेगुलेट द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, एनहांस द इम्यून स्ट्रेस एंड द स्ट्रेस रेजिस्टेंस. बिकॉज वी नो दैट बीज जो है जिस जगह से जाती है उसी जगह पे वापस आती है, चाहे वो 4 किलोमीटर जाके आए, 5 किलोमीटर जाके आए या 2 किलोमीटर जाके आए, वो दोबारा उसी डायरेक्शन में आती है और उसी अपने हाइट में आती है. These type of signals they are maintained by the even the by microbiota. जो different microbiota है वही उसको कंट्रोल करता है. Then we are studying the microbiome of the honeybee, especially Apis dorsata and Apis cerana in Kangra district in two locations, in Lower Valley and in the higher region of the Kangra district. We have isolated the different types of bacteria. We have isolated approximately 50 bacteria, beneficial bacteria from the gut of the bees, and out of these, some of the bacteria they are very important, like Lactobacillus, Pentos, then Bacillus. We have the different species from the different स्पीसीज ऑफ द बीज. मीन बहुत सारे हमारे पास ऐसे बैक्टीरिया हैं जो बेनिफिशियल है और दोनों बीज में भी ऑलमोस्ट सिमिलर बैक्टीरिया कुछ जो है वो रिकॉर्ड किए गए हैं. दे शो द पीएच टॉलरेंस, डिफरेंट पीएच पे उसको टॉलरेट कर रहे हैं. देन टेम्परेचर टॉलरेंस, एक्सपेरिमेंट्स में भी बहुत सारे बैक्टीरिया हमारे पास ऐसे हैं दैट शो द टेम्परेचर टॉलरेंस. देन बाइल टॉलरेंस इज देयर, देन सॉल्ट टॉलरेंस इज देयर. मीन्स इस सारे बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया हमने रिकॉर्ड किए हैं जो
इस तरह की टॉलरेंस जो है वो शो करते हैं। दे हैव द एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी। जो हमने एंटी माइक्रोबियल टेस्ट किए तो उसमें दे शोज द एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी अगेंस्ट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैथोजेनिक बैक्टीरिया। तो और जैसे ई कोलाई है उसके अगेंस्ट भी इस तरह से आप डायग्राम फोटोग्राफ में भी दे सकते हैं। दे हैव द एंटी माइक्रोबियल टेस्ट जो हमने डॉर्सेटा से रिकॉर्ड किए बैक्टीरियल आइसोलेट्स, उनमें भी डिफरेंट जो एक्सपेरिमेंट्स हैं उनमें भी इन्होंने इस तरह की जो एक्टिविटी है जो लाइक ई कोलाई, बैसिलस सबटाइलिस, सुडोमोनास, इस तरह के जो वो हैं उन पैथोजेंस के अगेंस्ट भी इन्होंने एंटी माइक्रोबियल जो एक्टिविटी है वो शो की है। हमने कुछ जो इसके आइसोलेट्स थे उनको हमने जीन सीक्वेंसिंग कराई और उनका फाइलोजेनेटिक ट्री देखा कि कहां पर वो मैच कर रहे हैं। तो उनके जो बड़े क्लोज जो है जो और मीन्स इस तरह के वो है रिकॉर्ड ऑलरेडी रिकॉर्डेड जो डाटा है उसमें इस तरह की सिमिलरिटीज है वो मिली। देन वी हैव द फाइलोजेनेटिक एनालिसिस ऑफ द एपिस डॉर्सेटा। एपिस डॉर्सेटा का भी है, सराना का भी है। तो जो हमारी बहुत means we can say it is very important that these beneficial bacteria they are present in the Apis dorsata and Apis cerana in this condition in Kangra region. We have published some data, some publication on the different aspects of this gut microbiota. We have some students who are working on the bees, honey bees, and we have the certificate course of apiculture and sericulture for 6 months. Even the students who are sitting here, they can register for it is in hybrid mode. इसको हम हाइब्रिड मोड में करते हैं, 6 मंथ का है। और इसमें इवन हमारे पास एक्वाकल्चर का भी है, फिशरी का जो 6 मंथ का कोर्स है। आफ्टर +2 यू कैन रजिस्टर एंड ओनली 1800 फीस इज देयर। सिर्फ 1800 रुपए लगेंगे और 6 मंथ का हम आपको हाइब्रिड मोड में टीचिंग करेंगे। कुछ प्रैक्टिकल्स और आपके कुछ एग्जाम्स जो हैं वो ऑफलाइन होंगे, बाकी आपकी सारी इस तरह से ऑनलाइन भी आप उसमें कर सकते हैं। आवर स्टूडेंट्स दे आर वर्किंग ऑन द माइक्रोबायोटा। आई ऑल्सो एक्सप्रेस माई ग्रेटिट्यूड टू माई PhD स्कॉलर्स जो जिनकी वजह से आज मैं यहाँ पर खड़ा हूँ और दे आर वर्किंग डे एंड नाइट फॉर द institution for the university. Thank you very much. If you have some query, I will try to answer the question. Sir. Good afternoon. Sir, honeybee colonies के डिक्लाइन होने का सबसे बड़ा रीजन क्या है, स्पेशली इन हिमाचल प्रदेश? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बिकॉज देर इज ए कंप्लीट फेलियर ऑफ द bee colonies because that is due to the mites like varroa mites. They are very important because sometimes they are come in the epidemic form. तो बहुत सारी colonies को ये destroy करते हैं even because they are very minute in their size and sometimes beekeepers they are fail to identify this type of predators or parasites and there is a complete failure of the bee colonies. कई बार जो है इन्फेक्शन जहां से हम कॉलोनी लेके आ रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, वहां से भी साथ में आता है एंड दैट कॉज कंप्लीट फेलियर ऑफ द दिस बी कॉलोनीज. गुड आफ्टरनून. सर, हम कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि जो भी हनी का सैंपल है वो प्योर है या फिर अनप्योर है? क्या कुछ ऐसे पैरामीटर्स हैं जिस पे वो डिपेंड करते हैं? देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैरामीटर्स. अगर हम बहुत सारे टेस्ट होते हैं जिनके बेस पे हम शुगर लेवल को चेक कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास प्रोसेस्ड हनी है तो उसमें फ्रुक्टोज का लेवल जो है वो बहुत ज्यादा होगा. उसमें और भी बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जो लैब टेस्ट में जो है हम जो क्वालिटी पैरामीटर्स हैं उनमें उसको देख सकते हैं. सॉरी,
किस सीजन में जो हनी बी कॉलोनी डाई होने के ज्यादा चांसेस होते हैं, क्यों? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इन विंटर सीजन, आफ्टर रेनी सीजन एंड विंटर सीजन, पोस्ट रेनी सीजन एंड द विंटर सीजन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब हनी फ्लो पीरियड होता है तो बीज जो है वो बहुत ज्यादा एक्सर्ट करती हैं। दे स्टार्ट कलेक्टिंग द डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेक्टर्स, पोलन्स, डे नाइट कंटिन्यूस, सॉरी नाइट नहीं बट डे कंटिन्यूस दे वर्क फॉर द कॉलोनी। वो बहुत एक्सर्ट हो चुकी होती है और बहुत सारी बीज जो है उसकी मोर्टिलिटी होती है, पॉपुलेशन साइज जो है वो डिक्रीज होता है। और इन रेनी सीजन बहुत सारे पैथोजेंस, बैक्टीरिया और स्पेशली वैक्स मॉथ, अगर उसमें बीज नहीं है, उन वैक्स अगर खाली है तो उसमें बहुत सारा इस तरह का वैक्स मॉथ जो है वो उसमें आता है और दैट लीड टू द डिप्लीशन ऑफ द कॉलोनी। एंड इन विंटर देयर इज ए मींस ड्रास्टिक डिक्रीज इन द टेम्परेचर, तो उससे भी बीज की मोर्टिलिटी होती है। तो रेनी, पोस्ट रेनी एंड द विंटर सीजन इज वेरी वेरी रिस्की फॉर द बीज। हनी की क्वालिटी और न्यूट्रिशन पर ज्यादा इफेक्ट हनी की स्पीशीज का होता है या फिर फ्लावर्स या इन्वायरमेंट का? वेरी गुड क्वेश्चन। जो हनी है वो बेसिकली इट डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ फ्लोरा, किस तरह के फूल से जो है वो शहद लेके आ रही है। फॉर एग्जाम्पल अगर लीची का शहद है तो वो लिक्विड होगा, बिल्कुल आपको लगेगा कि पानी की तरह है, इसमें पानी मिलाया हुआ है। मस्टर्ड का होगा तो उसमें आपको मस्टर्ड की जैसे तेल की जब हम तड़का लगाते हैं तो उसमें खुशबू आती है, उस तरह की उसमें उस तरह की फ्रेग्रेंस आएगी। या फिर अगर हमारे पास इक्लिप्टिस का है तो इक्लिप्टस की उसकी आपकी फ्रेग्रेंस आएगी। तो उस तरह की इट डिपेंड अपॉन द व्हाइट हनी भी है हमारे पास, जिसकी बहुत अच्छी वैल्यू है लैक्टेंथस से जिसको हम कलेक्ट करते हैं, तो वो इट डिपेंड अपॉन द फ्लोरा। थैंक यू।